Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about very interesting chapter, algebraic expression. In the previous class we have already come across the algebraic expressions like these. हमने previous class में भी पढ़ा था algebraic expression के बारे में. Algebraic expressions are useful to make the puzzles, problems and other statements in a simple way. In this chapter, we would extend this concept that how algebraic expressions are formed, how they can be combined, how we can find their values and so on. So इस chapter में हम अपने इस concept को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से algebraic expressions को form किया जाता है, कैसे combine किया जाता है, कैसे values उनकी निकाली जाती है. Okay? The terms related with algebra are as follows. Variables. A variable can take different values in different situations. Its value is not fixed. A variable is denoted by letter like x, y, z, l, m, n, p. जो alphabets जो होते हैं आपके variable को इनसे denote किया जाता है इन letters से. Okay? और इनकी value different situations में different होती है. तभी नहीं कहा जाता है variable. Okay? Constant. A constant has fixed value everywhere. Constant का मतलब होता है इसकी value fixed है. जैसे ये सारे ही numbers आपके constant है. Terms of an expression. A term may be constant, a variable or a product or quotient of numbers and variables. एक term जो होती है उसमें आपका constant भी होता है, variable भी होता है, या product या quotient होता है numbers का या variables का. Okay, for example, आपके पास एक expression है. Okay, ये expression आपकी बनी है 4x square 5x y and minus 6a. So such parts of an expression are called terms. Okay, factors of a term. A term is a product of its factor such as in 5xy. So factors 5xy के हो गए 5x and y. And coefficient, the numerical factor of a term is called numerical coefficient or simply coefficient of the term. कोई भी term है उसमें जो numerical factor होगा वो आपका numerical coefficient या coefficient होता है. For example, in 8xy की अगर हम बात करें numerical coefficient is 8 and in minus 6x square y numerical coefficient is minus 6. Okay, when the coefficient of a term is plus 1, it is generally omitted such as 1xy is written as xy. जब भी term plus 1 होती है तो हम generally लिखते नहीं उसे, means 1xy हम नहीं लिखेंगे, इसे omit कर दिया जाता है, हम लिखते हैं xy. Okay, algebraic expression. Algebraic expression is formed with adding and subtracting of various terms such as 5t square plus 6mn minus 4p or 3xy plus 2y square plus 6y minus 8m etc. Algebraic expression को form किया जाता है अलग अलग terms को add या subtract करके. Okay, example देखते हैं. Identify in the following expression which terms are variable and which are constant. Okay, so पहली हमारे पास expression है 8x square plus 6xy plus 9. So आपसे पूछा है कि variable कौन से हैं. So देखिए 9 is a number, ये तो आपका constant हो गया और ये दोनों आपके क्या हो गए variables. Okay, इसी तरह से हम अगली टर्म की बात करेंगे तो बच्चों इसमें 38 जो है ना आपका नंबर है, so ये constant है और बाकी आपके क्या है, बाकी आपके हो गए variables. Okay, and next टर्म की बात करें यहाँ पे 87 is the constant and बाकी सब आपके variable हो गए. राइट, एंड डी एक्सप्रेशन की बात करें सो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सभी आपके क्या है वेरिएबल्स हैं. ओके, वेरिएबल टर्म्स हैं. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. फॉर्म द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है. अ नंबर x, एक नंबर है x, इज इंक्रीज्ड बाय 6 मीन्स प्लस 6. 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n. m और n का प्रोडक्ट और उसका 1/4 यानी कि mn by 4 हो जाएगा. नेक्स्ट, नंबर 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z. अच्छा, y और z का प्रोडक्ट है उसका 1/3, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 माइनस 9. ओके, 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, या फिर आप से y z/3 माइनस 9 भी लिख सकते हैं. एंड डी पार्ट, सम ऑफ नंबर x एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. x एंड z का जो सम है, x और z का जो सम है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया है इन्हीं के प्रोडक्ट से, यानी कि x z से. ओके, सो एग्जाम्पल 3 आप खुद से करेंगे. ओके, एंड नाउ like terms. Terms having same literal factors.
numerical factors may be changed are called like terms such as minus 5x square y, 25x square y, 23y x square are all like terms. टर्म्स जिनके लिटरल फैक्टर सेम होते हैं, नंबर आपके सेम, न्यूमेरिकल जो फैक्टर है वो अलग हो सकता है. जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर वाई एंड वाई एक्स स्क्वायर. सी एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर ये एक ही है. ओके, अनलाइक terms having different literal factors are called unlike terms such as 5xy, 6x square minus 8y square are called unlike terms. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके literal factors different है, इसलिए unlike terms है. Okay, tips. Like terms differ only in numerical coefficients and not in variables. Like terms आपकी differ करती है numerical coefficient में but variables में नहीं. Okay, now algebraic expression और various type. अब आपकी algebraic expression ना अलग अलग तरह की होती हैं. A is monomial. A monomial has only one term. It may be constant or variable or combination of both. एक मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, जैसे देखिए इनमें सिर्फ एक एक टर्म है, सो मोनोमियल है. बाइनोमियल, बाई मीन्स टू. अ बाइनोमियल हैज टू टर्म्स. देखिए 1 2 टू टर्म्स इस एक्सप्रेशन में, टू टर्म्स एंड टू टर्म्स. 3 ट्राइनोमियल. A trinomial has 3 terms. Okay, जैसे आप देखेंगे 3 terms है, 1 2 3 terms. And D polynomial. A polynomial has more than 3 terms. Polynomial में 3 से ज़्यादा आपकी terms होती हैं, जैसे कि देखेंगे 1 2 3 4 4 terms है, means more than 3. Okay. Tips. Monomial can be constant or the multiplication of a constant and one or more variables with positive integral exponent. देखिए मोनोमियल आपका कांस्टेंट हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कांस्टेंट का, ओके, एक या ज़्यादा वेरिएबल्स का. एंड ऑन एडिंग 2 डिफरेंट मोनोमियल्स विच फॉर्म 2 डिफरेंट टर्म्स वी गेट अ बाइनोमियल. अगर आप दो डिफरेंट मोनोमियल को ऐड करेंगे ना तो 2 डिफरेंट टर्म बनेंगी, तो इसलिए वो बाइनोमियल हो जाएगा. एंड ऑन एडिंग 3 डिफरेंट मोनोमियल्स विच फॉर्म 3 डिफरेंट टर्म्स वी गेट अ ट्राइनोमियल. और इसी तरह से जब 3 डिफरेंट यहाँ पे बोला गया है, ओके, डिफरेंट मोनोमियल्स को ऐड करेंगे तो फिर आपको ट्राइनोमियल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी 3 टर्म्स हो जाएंगी. ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है monomial, binomial, trinomial and polynomial from the following algebraic expression. Okay, so देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है बच्चों, 1 2, so ये आपका हो जाएगा binomial. Okay, ये आपका एक ही टर्म है monomial. 1 2 3 ये है आपका trinomial. Okay, और यहाँ पे देखिए आपके टर्म्स 1 2 3 4 polynomial. 2 टर्म्स हैं binomial और ये कैसी टर्म होगी, ये सिंगल टर्म है. ओके, सो दिस इज मोनोमियल. ओके स्टूडेंट, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल्सो डू दिस एक्सरसाइज. ओके, नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. किस तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस और माइनस किया जाता है. सो देर आर सम रूल्स क्या कहते हैं. ए, ओनली लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं. एंड बी, कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. और जो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं फिर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सिंप्लीफाई करना है आपको इस एक्सप्रेशन को. ओके, एक्सप्रेशन इज 22x स्क्वायर y माइनस 17xy क्यूब प्लस 15y स्क्वायर प्लस 19y क्यूब x प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर. सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठे करना है. ओके, x स्क्वायर y सेम हो गए, सो 22x स्क्वायर y प्लस 15y स्क्वायर. इसके बाद देखते हैं ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, माइनस 17xy क्यूब प्लस 19y क्यूब x. और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये ऑलरेडी साथ में है ही, प्लस 15x स्क्वायर y स्क्वायर. 22 प्लस 15 इज 37x स्क्वायर y. ओके, प्लस का 19 माइनस का 17 तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2y
क्यूब एक्स आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एक्स वाई क्यूब. सिमिलरली 10 + 15 इज 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके बच्चों, तो देखा कितना सिंपल है. आपने सबसे पहले अरेंज करना है, लाइक टर्म्स को साथ में रखना है, तभी आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग. आपको ऐड करना है. सो देखिए, ध्यान से देखेंगे, सारे लाइक टर्म्स हैं आपके. 5x² y प्लस -6x² y प्लस 7x² y. ओके, सो 5x² y -6x² y प्लस 7x² y. आप चाहे तो नंबर्स को सेपरेटली आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 5 - 6 प्लस 7 x² y. ओके, ये आपका कितना हो जाएगा? 7 + 5 12 -6 is 6 x² y is the answer. ओके, इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट करेंगे एंड ऑल्सो डू प्रैक्टिस ऑफ अदर एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल 7 देखते हैं. What should be added to this expression to obtain this expression? हम इस एक्सप्रेशन में कितना ऐड करें कि हमें अगली एक्सप्रेशन मिले. सो फॉर एग्जाम्पल, आप 3 में कितना ऐड करेंगे कि आपको 5 मिले. सो तो आप ओरली करेंगे कि 3 में हमने 2 प्लस किया तो हमें 5 मिला, बट एक्चुअल में 2 कहाँ से आया? जब हमने 5 में से 3 को माइनस किया. ओके, दैट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो 2m² प्लस 4mn में से माइनस कर देंगे m² प्लस mn प्लस n². ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट. अच्छा बच्चों, याद रखिएगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा साइन चेंज हो जाते हैं. ओके, सो ये माइनस का m² हो जाएगा माइनस mn एंड दिस इज माइनस n². अब हम लाइक टर्म्स को साथ में रखेंगे. m² माइनस m² प्लस 4mn माइनस mn माइनस n². 2 - 1 is 1 m². 4 - 1 is 3mn माइनस n². ओके, मीन्स जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आपकी ये आएगी. ओके, सो एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर, डू इट योरसेल्फ. Now, finding the value of an expression. Value of an algebraic expression depends upon the values of the variable forming the expression. Example के through समझते हैं. Find the value of the following expression when m is equals to 2 and n is equals to -3. 6m minus 3n². m की वैल्यू इज गिवन. m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है -3. 6 m की जगह रखेंगे 2, n की जगह रखेंगे -3. 6 2s are 12 minus 3. 3 का स्क्वायर बच्चों होगा 9. 12 minus 3 9s are 27. ओके, एंड फिर आपके पास आंसर आ जाएगा -15. सो देखिए, वैल्यू आ गई ना आपके पास एक्सप्रेशन की. सो सिमिलरली यू विल डू अदर पार्ट ऑल्सो. आपने वैल्यूज पुट करनी है. ओके, 2 देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इज इक्वल्स टू -2. अब x की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 2. 3x plus 3. Okay, and the value of x is -2. So let's put the value of x -2. 3 2s are 6, but minus का 6 plus 3. So -3 is the answer. So है ना simple. So similarly you will do other part also. Okay, and in example 3 also आपको x, y, z की value given है. आप उनकी value को put करेंगे. Okay. Exercise 8.3 is given over here students. Do it yourself. और देखा ना आपने कितना simple और interesting ये chapter था. So keep doing practice of this chapter.